Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. So students, in our last session we have discussed about examples of nucleophilic addition reaction. We have discussed two examples, that was reaction with hydrogen cyanide and the product was cyanohydrine, and the another reaction, that was reaction with sodium bisulfite and the product was aldehyde or ketone sodium bisulfite adduct. That was white crystalline solid, and that reaction was used to separate aldehyde and ketone or carbonyl compound from other organic mixture. So two reactions we have discussed. Now we will discuss other examples. Like first reaction, we have addition of alcohol. So examples of nucleophilic addition reaction. Our third reaction is addition of alcohol, or we can say formation of acetyl or ketyl. So let's start. What happens when carbonyl compound reacts with alcohol? So student, this is carbonyl compound, C double bond O. Clear? Whether it is aldehyde or it is ketone. So if I am writing here H, so this is aldehyde. Okay. Now if I am writing here methyl, so this is acetaldehyde. Now what happens when acetaldehyde reacts with alcohol? So I am taking here alcohol. Now this reaction will carried out in presence of dry HCl, and this is reversible. Now student, this bond will split here. Oxygen is negative, carbon is positive, medium is acidic, so H plus will attack, H plus and OR minus. Now what to do? So student, this OR will approach to this carbon and H plus will approach to O, and we will get the product R CH. aldehyde तो है ही, ठीक है. Now H plus approaches to O, it will form OH and OR will approach to carbon. So we will find product like this, OH and OR. This is acetal. So what we will say, this is acetal. Okay, now what to do? Now again reacts with alcohol, again reacts acetal, sorry, this is hemiacetal. Now all the time I forgot, this is hemiacetal, half reaction हुई ना, hemiacetal. Now again it will react with alcohol in presence of dry HCl, okay, and water will be removed. Now you will get acetal, OR and OR. This is acetal. क्लियर? तो बच्चों, जब एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन या कोई भी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं करा दूं किससे, अल्कोहल से, तो पहला प्रोडक्ट बनेगा हेमी एसिटल और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा एसिटल. ठीक है. अगर मैं कहूँगी नहीं कीटोन ले लो, तो बच्चों कीटोन या एसीटोन ले लो. नाउ एसीटोन रिएक्ट्स विद अल्कोहल. मान लो इस बार मैंने ले लिया मीथेनॉल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl. तो बच्चों ये बॉन्ड तो यहाँ स्प्लिट होना है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. HCl एसिडिक मीडियम मिलेगा हमें, तो H प्लस O माइनस. ठीक है. अब क्या होगा, तो भाई H प्लस इस O को अप्रोच करेगा, इट विल फॉर्म OH, एंड OCH3 इस कार्बन को अप्रोच करेगा, इट विल फॉर्म OCH3. सो कंपाउंड लाइक दिस, O के साथ H आ जाएगा बच्चों और ये बनेगा OCH3. दिस इज हेमी कीटल. ओके, हेमी कीटल. नाउ फर्दर इट विल रिएक्ट्स विद मिथाइल अल्कोहल. ओके, further it will react with methyl alcohol in presence of dry HCl. Now what will happen? So we will say now water is removed and the product is ketal. First one is hemiketal, second one is ketal. So ketal.
क्लियर? तो जब मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराऊंगी, पहले स्टेप में हेमी एसिटल, सेकेंड स्टेप में एसिटल। कीटोन की रिएक्शन बच्चों अल्कोहल से कराती हूँ, मीथेनॉल से कराती हूँ, हेमी कीटल और कीटल, कोई डाउट नहीं। आप उसको लिख भी सकते हैं डाइमिथाइल कीटल, है ना। नाउ शॉर्ट में क्या रहेगा बच्चों, है ना, एग्जाम में मान लो आपके पास टाइम नहीं और आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, तो शॉर्ट मेथड क्या है, तो आपको बताना है व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विद अल्कोहल, when carbonyl compound reacts with alcohol in presence of dry HCl, okay, then क्या होगा, तो शॉर्टकट लिखना है तो भाई ये वाटर रिमूव हो जाएगा और जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज OR एंड OR। अब बच्चों अगर एल्डिहाइड लेंगे देन आंसर विल बी एसिटल, और कीटोन लेंगे तो आंसर विल बी कीटल। क्लियर? तो एसिटल भी बन सकता है एल्डिहाइड लेने पे, कीटल बन सकता है कीटोन लेने पे, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब बच्चों मैकेनिज्म की बात करें, ओनली फॉर कंपटीशन, बोर्ड एग्जाम्स में मैकेनिज्म नहीं लिखना है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं भाई इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताओ, क्योंकि कुछ बच्चे क्या बिना मैकेनिज्म पढ़ नहीं पाते हैं, दे नीड ऑल द टाइम मैकेनिज्म ऑफ ईच एंड एवरी रिएक्शन। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, सो बच्चों रिएक्शन कौन से मीडियम में हुई, तो मैं कह दूंगी रिएक्शन का जो मीडियम था दैट इज एसिडिक मीडियम, ठीक है, रिएक्शन का मीडियम जो है दैट इज एसिडिक मीडियम। अब क्या करना है बच्चों, तो एल्डिहाइड ले लिया मान लो, अब एसिडिक मीडियम लिया है, सबसे पहले अप्रोच करेगा प्रोटॉन, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन पे, तो ये प्रोटॉन अप्रोच कर लेगा यहाँ ऑक्सीजन पे, सो इट विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड OH प्लस एंड H, ओके। अब क्या करना है, तो बच्चों देखो ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव होते ही बच्चों अल्कोहल अप्रोच कर लेगा, ठीक है। अल्कोहल कहाँ अटैक करेगा, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीजन इस कार्बन को अप्रोच कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा RC, ये बॉन्ड यहाँ टूट चुका है बच्चों, तो ये तो हो गया OH, ठीक है। यहाँ क्या था H, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन प्लस को डोनेट कर देगा, सो इट विल फॉर्म कंपाउंड लाइक दिस, प्रोटोनेटेड अल्कोहल विद प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड। अब क्या करें, फिर ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दो, अब ये प्रोटॉन निकल गया, ठीक है, ये प्रोटॉन निकल गया, तो अब आपके पास क्या बना, तो हम कहेंगे RC H OH एंड OR। तो आप चेक कर लो, हेमी एसिटल पे तो आप पहुंच गए, है ना, हेमी एसिटल तक तो पहुंच गए, देखो, है ना, क्लियर। पहले स्टेप रिएक्शन शुरू कहाँ हुई, तो हम कहेंगे प्रोटॉन से, पहला अटैक हुआ प्रोटॉन का किस पे, इस ऑक्सीजन पे, प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड बन गया। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, प्लस नहीं हो सकता, तो हमने बॉन्ड स्प्लिट कर दिया, तो कार्बन पॉजिटिव हो गया, तो अल्कोहल ने अटैक कर दिया, ठीक है। अब अल्कोहल ने अपने ऑक्सीजन के थ्रू अटैक किया, तो वो भी प्रोटोनेटेड अल्कोहल कनेक्ट हो गया इससे, फिर तो हम कहेंगे वापस प्रोटॉन एलिमिनेट हो गया और हमारे पास बन गया हेमी एसिटल। अब क्या करें, तो भाई अब हेमी एसिटल बन गया, ये प्रोटॉन बचा ही है ना, ये प्रोटॉन बच्चों अप्रोच करेगा वापस इस ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो अब मैं इस CH को बंद करके लिख देती हूँ, तो भाई ये है OR, ये बन गया OH2 प्लस, ठीक है। अब बच्चों OH2 प्लस, तो मैं कहूँगी ये वापस वाटर बन के क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर ये वाटर बन के एलिमिनेट हो जाएगा तो कार्बन तो फिर प्लस हो गया, अब कार्बन फिर प्लस हो गया तो दूसरा अल्कोहल आएगा, दूसरा अल्कोहल आएगा इस कार्बन पे अटैक करने, है ना, ये बॉन्ड लेके चला गया, ठीक है। तो अब मुझे मिला RCH, यहाँ तो क्या था OR और यहाँ है ORH, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब
तो वापस प्रोटॉन क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो बच्चों प्रोटॉन एलिमिनेट करोगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सो इट विल बी RCHOR and OR. फाइनली वी विल गेट एसिटल। ठीक है, तो बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता मैकेनिज्म, फिर भी अगर पढ़ना है तो मैकेनिज्म ये है। क्लियर? तो बच्चों ये रिएक्शन हो गई हमारी, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड रिएक्शन विद कीटोन। इफ वी आर टेकिंग एल्डिहाइड प्रोडक्ट विल बी एसिटल एंड इफ वी आर टेकिंग कीटोन देन प्रोडक्ट विल बी कीटल। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ग्लाइकॉल। ठीक है, तो बच्चों रिएक्शन विद ग्लाइकॉल, अब करना क्या है, तो आपको कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन कराना है ग्लाइकॉल से। नाउ व्हाट इज ग्लाइकॉल बच्चों, तो 2 कंटिन्यूअस कार्बन एंड 2 कंटिन्यूअस OH। ठीक है, दिस इज ग्लाइकॉल। अब क्या करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहां से वाटर दिख रहा है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है भाई, वाटर तो एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी इसको कनेक्ट करके लिख दो। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, OCH2 OCH2 एंड दिस। अब बच्चों एल्डिहाइड लेंगे तो प्रोडक्ट विल बी साइक्लिक एसिटल, और कीटोन लेंगे, है ना, अगर एल्डिहाइड लिया तो साइक्लिक एसिटल, और अगर कीटोन लिया then product will be cyclic ketal. Okay, so cyclic acetal, cyclic ketal depends what we are taking. For example, अगर आप लेते हैं acetaldehyde, now question क्या बनेगा, what happens when acetaldehyde reacts with glycol? अब पूरा नाम है बच्चों इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, what happens when acetaldehyde reacts with ethylene glycol? करेंगे क्या, तो बस वाटर को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब वाटर एलिमिनेट करते ही आंसर बना दो, सो इट विल बी CH3CHO CH2 and your answer will be cyclic acetal. ठीक है भाई, आंसर इज साइक्लिक एसिटल। नाउ कीटोन से रिएक्ट करा दो, एसीटोन, फर्स्ट कीटोन एसीटोन, सो एसीटोन रिएक्ट्स विद ग्लाइकॉल और यू कैन से इथाइलिन ग्लाइकॉल। करना क्या है, तो भाई वाटर एलिमिनेट करना है। ठीक है, और बाकी एज इट इज लिख दो, सो दिस विल बी CH3CH3। दिख रहा है आपको, वाटर चला जाएगा तो कनेक्ट, 2 बॉन्ड है ना बच्चों, दोनों बॉन्ड इससे कनेक्ट कर दो, है ना, तो 2 बॉन्ड तो थे ही कार्बन के, OCH2, फर्दर कंटिन्यू CH2 एंड द प्रोडक्ट नेम, तो बच्चों ये है साइक्लिक कीटल। तो आपको जो NCERT में क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा साइक्लिक कीटल ऑफ इथेनॉल, है ना, साइक्लिक कीटल ऑफ हेक्सेनल, तो कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ एल्डिहाइड लेना है, हेक्सेनल है तो हेक्सेन बना दो, यहाँ पे एल्डिहाइड तो कॉर्नर पे रहेगा, यहाँ पे 5 कार्बन लिख दो। ठीक है, हेक्सेनल और रिएक्ट करा दो तो साइक्लिक कीटल बन जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया रिएक्शन विद ग्लाइकॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद थायो एल्कोहल। रिएक्शन विद थायो एल्कोहल। ठीक है, अब होगा क्या, तो देखो अगर शॉर्ट में लिखना है तो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन थायो एल्कोहल। बच्चों ROH तो होता है एल्कोहल और RSH होता है थायो एल्कोहल। तो अब रिएक्शन तो आपको दिख ही रहा है, शॉर्ट में लिखना है, सेम HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई वाटर तो एलिमिनेट हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी, सो प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, तो प्रोडक्ट होगा मरकेप्टल। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सो प्रोडक्ट विल बी मरकेप्टल। क्लियर?
तो हम कहेंगे भाई अब एल्डिहाइड लो, कीटन लो, क्या बनेगा? तो मर्केप्टल तो है ही, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग एसिटल्डिहाइड, ओके, सो CH3 CHO, दिस इज एसिटल्डिहाइड। नाउ एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन आप करा दो इथेन थायोल से। एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन बच्चों आपको कराना है इथेन थायोल से इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब होगा क्या? तो बस वाटर एलिमिनेट कर दो एंड योर आंसर विल बी CH3 CH SC2H5 एंड SC2H5। अब नाम क्या लिखे बच्चों? तो देखो आपको उस साइड 2 इथाइल दिख रहे हैं, है ना, 2 इथाइल दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे डाई इथाइल, ठीक है। इस साइड एक मिथाइल दिख रहा है, तो हम कहेंगे डाई इथाइल मिथाइल और मर्केप्टल, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में दोनों में मर्केप्टल ही लिखा है, तो बस डाई इथाइल मिथाइल मर्केप्टल। नाउ इफ वी आर टेकिंग कीटोन, ठीक है, तो बच्चों अगर आप कीटोन ले रहे हैं, ओके, CH3 C double bond O and reacts with ethane thiol, ओके। तो बच्चों ईथेन थायोल की रिएक्शन जब आप कराएंगे HCl से, सॉरी ईथेन थायोल की रिएक्शन कराएंगे कीटोन से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, अगेन वाटर इज रिमूव्ड, तो हम कहेंगे मर्केप्टल तो बनेगा, बस नाम चेंज कर दो इस बार। तो बच्चों क्या बना? तो मैं कहूंगी 2 इथाइल है, डाई इथाइल तो बनेगा। फर्दर वी हैव 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल भी बनेगा, तो डाई इथाइल डाई मिथाइल मर्केप्टल, ओके। सो डाई इथाइल डाई मिथाइल मर्केप्टल। अब बच्चों ये था तो नहीं, आपके शायद NCERT में तो नहीं है। सो अगेन दिस रिएक्शन इज फॉर नीट एंड जे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? तो ये जो मर्केप्टल हम बना रहे हैं, है ना, ये जो मर्केप्टल मैंने बनाया है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है। दिस मर्केप्टल फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ये मर्केप्टल जो बनाया बच्चों ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। किसके अंदर? तो एक इंपॉर्टेंट सल्फर ड्रग है बच्चों, है ना, दिस मर्केप्टल फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है। सल्फर ड्रग सुना है क्या आपने? सल्फर ड्रग्स, सल्फास की गोलियां जिसे बोलते हैं, है ना, सेडेटिव होता है। तो देखो मैंने लिख दिया भाई डाई इथाइल डाई मिथाइल मर्केप्टल, यानी कि ये कंपाउंड। नाउ दिस डाई इथाइल डाई मिथाइल मर्केप्टल फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 टू फॉर्म, तो क्या बनेगा बच्चों? ये सल्फर जो है ऑक्सीडाइज्ड होके SO2 बना लेगा, CSO2 C2H5 एंड अगेन SO2 C2H5, और ये जो ड्रग है, ये जो कंपाउंड बना दैट इज सल्फोनल और सल्फा ड्रग, ठीक है। तो एवरीडे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उसमें आपको पूछते हैं भाई सल्फोनल क्या है, सल्फा ड्रग्स क्या है? तो ये है सेडेटिव, ठीक है, तो दिस इज सेडेटिव, क्लियर। नाउ बच्चों थायोग्लाइकोल से रिएक्शन करा दे तो रिएक्शन विद थायोग्लाइकोल्स, तो भाई थायोग्लाइकोल से अगर आप रिएक्शन कराएंगे इसकी, है ना, रिएक्शन विद थायोग्लाइकोल, तो सिंपल रिएक्शन ये आपने ले लिया, कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्कोहल की जगह क्या लेना है बच्चों? तो आपको लेना है थायोग्लाइकोल, क्लियर। सो दिस इज थायोग्लाइकोल। रिएक्ट आपको कराना है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड BF3। अब बच्चों दिख ही रहा है आपको, क्या करें? वाटर एलिमिनेट कर दें, बस फाइनल प्रोडक्ट लिख दो आप। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? CSCH2
बॉन्डेड विद CH2S और ये से, ठीक है। तो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, रिएक्शन आप कराओ तो थायोग्लाइकोल। तो बच्चों अभी थायोग्लाइकोल से रिएक्ट कराओगे तो पिछली बार था साइक्लिक एसिटिल कीटल था जब हम ग्लाइकोल से कराते थे, इस बार हो जाएगा साइक्लिक मरकेप्टल। So this is cyclic mercaptan. Again, all these reactions belong to NEET and JEE. If you are preparing for board exams, then CBSE में NCERT में इस तरह की कोई reactions नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कब पढ़नी है कब नहीं पढ़नी है। Now next reaction. So next reaction is reaction with PCl5. Okay. So next reaction is reaction with PCl5. Now students, what happens when carbonyl compound react with PCl5? तो बच्चों PCl5 कैसे रिएक्ट करेगा? तो आपको पता है PCl5 का जो ज्योमेट्री है दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 बॉन्ड लेंथ तो सेम है, अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ा हो तो 3 बॉन्ड लेंथ तो सेम होती है, इक्वेटोरियल 202 पिकोमीटर, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, है ना। तो वो होती है एक्सियल बॉन्ड लेंथ दैट इज 220 पिकोमीटर अराउंड। अब होता क्या है बच्चों, 240 पिकोमीटर एग्जैक्ट, है ना। 202 पिकोमीटर जब एक लेंथ में एक ही एक्सिस पे होती है, एक ही प्लेन पे होती है, और अबव द प्लेन बिलो द प्लेन जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है दैट इज 240 पिकोमीटर। मतलब जब PCl5 टूटता भी है तो PCl3 अलग और Cl2 अलग, क्योंकि लेंथ 3 की सेम है 2 की सेम है। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही है, PCl3 और आप ऐसे लिख दो ClCl, ठीक है। तो आपको दिख रहा है बाहर क्या जाएगा भाई, तो हम कहेंगे देखो ये POCl3 एलिमिनेट हो जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी ClCl। एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन तो मैं कह दूं जेम, और बच्चों दोनों क्लोरीन है तो जेम डाई क्लोराइड। सो कंपाउंड विल बी, प्रोडक्ट विल बी जेम डाई क्लोराइड। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन acetaldehyde reacts with PCl5? ओके, तो हमें क्या करना है, हमें POCl3 को एलिमिनेट करना है, एंड द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH Cl Cl। प्रोडक्ट विल बी इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, क्लियर। और यू कैन से 1,1 डाइक्लोरोइथेन or you can say ethylidene dichloride. Similarly, what happens when ketone reacts with PCl5? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कीटोन को PCl5 से रिएक्ट करोगे तो POCl3, है ना। ऊपर वाले रिएक्शन में सब में क्या हुआ, POCl3 एलिमिनेट हो गया, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ठीक है भाई। तो POCl3 here again eliminated and you will find क्या मिलेगा, तो देखो CH3C CH3 Cl and Cl, ठीक है। You can say 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन और we can say आइसोप्रोपाइलिडीन, है ना बच्चों। कॉर्नर वाला कार्बन क्या होता है, नॉर्मल, बीच वाला क्या होता है आइसो। प्रोपाइल में ओनली इन केस ऑफ प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोल के आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। सो ईडीन क्यों आता है, तो भाई एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ईडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है। डायरेक्ट IUPAC नाम नहीं देके पूछा तुमसे हाउ विल यू गेट आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड फ्रॉम कीटोन, तो आपको ध्यान रखना है भाई सीधी रिएक्शन जो है वो हमें करानी है किससे, एसीटोन से, PCl5 की रिएक्शन, क्लियर। सो दिस will be how we will get gem dihalide from carbonyl compound, clear। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Now student, one more reaction that is Wittig reaction, again नीट जेईई के सिलेबस में ही है, ठीक है। तो बच्चों first the name of the reaction is Wittig reaction, ठीक है। अब विटिग रिएक्शन क्या है, तो बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन आपको करानी है ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन, ठीक है। सो कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विद ट्राइफिनाइल
फॉस्फोरेन, ठीक है, दिस इज विटिक रिएक्शन. कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विद ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन. ठीक है, अब जो होता क्या है इसमें, बॉन्ड यहाँ स्प्लिट होता है. दिस कार्बन मेक नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. ठीक है, अब ये चीज़ जो है ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एल्कीन. ठीक है, एंड द बाय प्रोडक्ट विल बी ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड. ठीक है, तो बहुत बार बच्चों कॉम्पिटिशन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना. अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा, पता चला विटिक तो पढ़ी नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन विटिक पे आ गया, तो बेटर है कि थोड़ा आइडिया तो लग ही जाए, है ना बच्चों. मैकेनिज्म, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको मिलेगा. एक और वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक सेंड कर दूँ. इसका मैकेनिज्म, PCl5 का मैकेनिज्म, ग्लाइकॉल्स का, थायोअल्कोहॉल्स का, सारे मैकेनिज्म दिए हुए. ठीक है, फिलहाल हमारा इंपॉर्टेंट काम है कि हमें रिएक्शन लर्न होनी चाहिए, रिएक्शन आइडिया होना चाहिए कि क्या है, कैसे है. ठीक है, तो अब करना क्या है, तो हम कहेंगे भाई ये ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड अलग कर दो और फाइनल आंसर दे दो. सो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया एंड द बाय प्रोडक्ट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड. अब एल्कीन में आपको दिख रहा है यहाँ क्या बन गया, तो हम कहेंगे दिस इज प्रोपीन. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन साइक्लोहेक्सेनॉन रिएक्ट्स विद ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन. ठीक है, क्या नाम है इसका, तो नाम लिख देती हूँ एक बार मैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन. ओके, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन. तो अब करना क्या है आपको, तो आपको पता है ये चीज़ तो बाहर आ जाएगी और जो आपका आंसर है दैट विल बी लाइक दिस. ठीक है, और बाय प्रोडक्ट जो है ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड. नाउ व्हाट इज दिस, तो इसका नाम है बच्चों मिथाइलिडीन. मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन. दिस इज मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन. क्लियर, तो आपके पास बन गया क्या, विटिक रिएक्शन और उसका प्रोडक्ट. तो बच्चों यहाँ हमारी रिएक्शंस खत्म होती है. एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. नेक्स्ट टर्न में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन. एडिशन तो होगा, एलिमिनेशन भी होगा. मतलब ऑक्सिम कैसे बनेगा, एल्डोक्सिम क्या है, कीटोक्सिम क्या है, फिर DNP टेस्ट क्या है, ब्रेडी रिएजेंट किसे कह रहे हैं, शिफ बेस क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजीन, हाइड्रोजोन कैसे बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजोन कैसे बनेगा, रिएक्शन विद सेमी कार्बोजॉइड, लाइक दिस. बहुत सारी रिएक्शंस है, तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तो आज की क्लास में इतना ही. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.